time complexity, right? So in this particular lecture, I just want to give you means some of the examples, okay? Which examples like we will try to understand how to find out the time complexity. We have seen in the last lecture. Suppose your function is increasing as increasing in your input, so that will be the linear, है ना? Suppose you're having 100 elements and you are searching for the elements one by one linearly, so that will the time complexity for such a type of algorithm, it will be a big O of n. So it is directly proportional with number of elements, okay, and at which position you will find your number. So that is a linear one. Then we have seen whenever you are dividing your list, okay, suppose you're having 100 list and you are continuously dividing your list into the smaller parts, divide and conquer technique. At that time your complexity for your algorithm will be logarithmic, है ना, log of n. And then we have seen, suppose you are using something like that, I'm having one loop and inside that loop I'm using another loop, and that inside loop is responsible for all the operations, then I can say that the complexity for such a type of algorithm will be n square, okay, that will be n multiplied by n. Now we will just see some of the examples just to understand this complexity thing very clear. So just see here, I'm having one loop, just a minute, huh? Sorry. Okay, just see the algorithm. This is the code, right? This is the C code. So there is one loop and the loop starts with I is equals to 0. It ends on I less than n, and the operation is increment, that is I plus plus. Now just tell me for how many times this loop will run. This loop will run for n plus 1 time. This loop will run for n plus 1 time, and inside statement, this statement will run for n time. है ना? This for loop, it will run for n plus 1, and inside statement will run for n time. So what we say that the time complexity is nothing but for how many times your statement will repeat, है ना? आपके स्टेटमेंट कितने बार रिपीट होते हैं, उसका वो होता है आप लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो आई कैन क्लियरली सी हियर द स्टेटमेंट इज repeating for n number of times. So I can say that the time complexity for such a type of algorithm will be big O of n. So time complexity is nothing but जितने भी स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम के अंदर है, वो स्टेटमेंट्स कितने बार रन हो रहे हैं, ओके, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं, कितने बार दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ओके, दैट इज नथिंग बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. And you can clearly see the statement, this statement will run for the n time. Why? Because I have used a loop here, and loop runs from 0 up to the n, है ना? loop runs from 0 up to the n. suppose मैंने यहाँ पे loop जो लिखा है वो रन हो रहा है suppose 0 to 10 टाइम, है ना, 0 to 10 टाइम. सो कितनी बार ये स्टेटमेंट रिपीट होगा? तो स्टेटमेंट रिपीट होगा फ्रॉम 0 to 9. स्टेटमेंट रिपीट होने वाला है 0 अप टू द 9. तो 0 अप टू द 9 मतलब कितने नंबर्स हो रहे हैं हमारे पास? तो 0 अप टू द 9 मतलब मेरे पास हो रहे टोटल 10 नंबर. तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O of 10. ओके, दैट इज अ बिग O of 9, आई कैन से. So this is how you can find out the time complexity for how many times your statements are repeating. This is a one simple example. Now just let me take the next example. अच्छे से देख लेना, थोड़ा सेम ही है. फॉर आई इज इक्वल टू 1, सॉरी, फॉर आई इज इक्वल टू n, आई ग्रेटर देन 1 एंड आई माइनस माइनस. यहाँ पे जो कंडीशन है ना, आई हैव जस्ट रिवर्स द कंडीशन. राइट नाउ माय लूप इज स्टार्टिंग विद द n, है ना, एंड इट विल एंड व्हेनेवर वो मतलब कंडीशन कहाँ तक चलनी है? जब तक आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन रहती है, एंड आई को क्या कर रहे हो आप लोग? डिक्रीमेंट करवा रहे हो. सो फॉर हाउ मेनी टाइम्स दिस फॉर लूप विल रन? दिस फॉर लूप विल रन फॉर n plus 1 टाइम, है ना, जितना भी होगा उसका एक टाइम वो ज्यादा लेगा. एंड फॉर हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट विल रन? इट विल रन अगेन फॉर द n टाइम. अगर कंडीशन सिर्फ मैं रिवर्स लिख दूं तो उसका कुछ असर होता नहीं है ना, वी नो दैट. अगर मैं लूप 1 से 10 तक लिख रही हूँ या फिर आई एम राइटिंग द लूप फ्रॉम 10 to 1, डजंट मैटर, वो रन जो होने वाला है वो 10 टाइम ही रन होगा. सो सेम कंडीशन हियर, वेदर यू आर स्टार्टिंग योर लूप विद 1 and running up to the n, or whether you're starting your loop from n and you're ending at 1. So these things doesn't matter. Your loop will run for n number of time, your statement will run for n number of time. So that is the reason why the time complexity here, it is always big O of n, because वो n time ही run होने वाला है. Okay, now see the next example. थोड़ा complicated है. Okay, we are having something
जस्ट अ मिनट। चलो, तो अभी अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यू कैन सी हियर मेरा जो लूप चल रहा है, राइट, मेरा जो लूप चल रहा है दैट इज आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, और आई की जो वैल्यू है ना, आई एम इंक्रीमेंटिंग दैट वैल्यू बाय 2। मतलब क्या हो रहा है, अगर इफ आई एम स्टार्टिंग माय लूप विद आई इज इक्वल टू 1 और मैं इसको 10 तक रन कर रही हूँ ना, तो एक ही बार में आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं हो रही है, आई की वैल्यू +2 हो रही है। सो अगर इफ यू आर हैविंग योर कंडीशन अप टू लेस देन 10, तो लूप तो आपका 5 टाइम ही रन होगा ना, बिकॉज आई की वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट हो रही है। अगर पहले आई की वैल्यू 1 थी तो नेक्स्ट इट विल बी 3 थी, उसके बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में 10। सो फॉर हाउ मेनी टाइम्स योर लूप विल रन, इट विल रन फॉर एग्जैक्टली हाफ, है ना, हाफ में रन होगी। सपोज 10 होगा तो 5 होगा, 20 होगा तो 10 होगा, 100 होगा तो 50 होगा। सो फॉर हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट विल रन, this statement will run for n by 2. Why n by 2? Because you are incrementing this by 2. अगर मैं यहाँ पे 10 से इंक्रीमेंट करती हूँ तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जो स्टेटमेंट रन होगा दैट विल बी फॉर n डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं यहाँ 20 टाइम लिखती हूँ तो इट विल बी n डिवाइडेड बाय 20। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड कि कभी कभी भी आप कोई भी फॉर लूप लिख रहे हो, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो +2 से, +4 से, +5 से, तो स्टेटमेंट जो रन होंगे दैट विल बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ इंक्रीमेंट, right? So the time complexity again we know that divided by 2 है, this is a constant, है ना, by 2 it is a constant, so I can say that the time complexity for this algorithm is also n. It will be proportional to the number of elements. Okay, so it is also n. Now the next example, it is I को increment कर रहे हो आप अभी 20 से, मैंने पहले ही बोला, तो इसका जो statement repeat होगा that will be number of that n divided by 20. अगर 20 होगा तो एक ही बार रन होगा, है ना, अगर 40 होगा तो इट विल रन फॉर द 2 टाइम। सो जितना भी आप n का नंबर ले रहे हो उससे वो डिवाइडेड बाय 20 होगा। अगेन 20 इज अ कांस्टेंट, सो मीनिंग इज दैट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वेरी केयरफुली ये एक बार समझ लेना, बिकॉज सॉर्टिंग के जितने भी एल्गोरिदम्स है वो सारे एल्गोरिदम्स इसी बेसिस पे काम करेंगे। ओके, सो वी आर हैविंग 2 लूप्स। मेरे पास एक फॉर लूप है फॉर i is equals to 0, i less than n और i plus plus। Inside for loop I'm having second for loop for j is equals to 0, j less than n और j plus plus। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट होती है? ओके, सो यू कैन क्लियरली सी ये जो लूप है, ओके, दिस लूप इट विल रन फॉर n+1, है ना, दिस विल रन फॉर n+1। ऊपर वाला है वो भी कितनी बार रन होने वाला है, n+1। और अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन होगा, पहले तो ये इनर लूप के लिए n टाइम रन होगा और उसके बाद में आउटर लूप के लिए भी ये n टाइम रन होगा। सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और फॉर हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल रिपीट, इट विल रिपीट फॉर n मल्टीप्लाई बाय n। why n multiply by n? Because this loop is also condition में क्या दिया है, it also ends at j less than n, so there is n, right? Here also we are having n, so meaning is that this statement will execute for n multiply by n time, and the time complexity for this will be big of n multiply by n, or in a simple language I can say that the time complexity for this algorithm will be n square। ये समझ लो। देखो पहला जो लूप है उसका जो भी लूप है वो चलेगा n+1 टाइम, जो नीचे वाला लूप है वो चलेगा n+1 टाइम, और अंदर वाले जो स्टेटमेंट है दैट विल रन फॉर n और n टाइम। व्हाई? बिकॉज ये भी n टाइम रन होगा और ये भी n टाइम रन हो रहा है। सो n मल्टीप्लाई बाय n कितना हो रहा है आप लोगों का, n स्क्वायर। तो अंदर वाले जो भी स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन होने वाला है, इट विल एग्जीक्यूट फॉर n स्क्वायर टाइम। और अगर ये n स्क्वायर टाइम रन हो रहे हैं तो n तो कोई कांस्टेंट नहीं है ना, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई बाय n, सो दैट इज द रीजन व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O of n स्क्वायर। तो whenever you can see any nested loops, तो आप लोगों को जितने nested loops आ रहे हैं उतने आपको रेज टू कर देना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग फर्स्ट फॉर हियर, ओके, मेरे पास पहला फॉर है, इस पहले फॉर के अंदर n तक जा रहा है, ये द फर्स्ट आई एम डायरेक्टली राइटिंग द कंडीशन कहाँ तक जाना है, तो ये लूप रन होगा n number of times। Inside this for loop I'm having another for loop, that is again I'm having for, और ये for का जो रन होगा that will be for the m times, ये m टाइम रन होगा। Inside this for loop I'm having again a third for loop, और ये जो for loop है ये for loop जा रहा है सपोज p number of time। ओके, तो पहला लूप कितनी बार रन होगा, n टाइम, दूसरा कितनी बार होगा, m टाइम, और अंदर वाला लूप कितनी बार रन हो रहा है, p टाइम। So what will be the time complexity in such a case? The time complexity will be p multiplied by m multiplied by n.
PMN. Why? Because inner statement will run for P times, inner statement will run for M time and N time. So it will be the multiplication. It will be the multiplication of P, M and N. And suppose instead of this M and P, I'm using the same variable name. I'm using the same variable name as a N, and here also I'm using N. Then what will be the time complexity in such a cases? The time complexity will be N multiplied by N multiplied by N. It will be N cube. So कितने आप लोगों के nested loops आ रहे हैं, इसके basis पे you can find out the time complexity. So if I'm having 2 nested loops, then I can say that my loop will program will run for n square time. अगर मेरे पास 3 है तो I can say for the n cube time. 4 टाइम हो गए तो n4, right? So this is how you can work with the time complexity. ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है? Okay, roll number 78. Yes. मैम एक फॉर लूप है, जैसे n लिया एंड फिर उसके अंदर m रखा एंड उसी के अंदर p रखा, मतलब m के अंदर p नहीं रखा, n के अंदर ही p और m रखा दोनों. n के अंदर p और m, that are the then they will be treated as a variables. They won't be counter variable. मतलब तूने नो मैम, हाँ फॉर लूप चला एक बार n के लिए, फिर n के लिए वो m में जाएगा और फिर m के लिए वो p में जाएगा, है ना? ऐसा रखा है यहाँ पे. यस मैम उसकी जगह पे पहले n के लिए चलेगा, फिर m के लिए चलेगा, फिर हाँ. ओके सो यू आर हैविंग सेपरेट फॉर लूप, है ना? तो उस चीज में कैसे चलेगा? तो पहला जो फॉर लूप होगा उसका क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n. लेट मी जस्ट मैं ना एक बार मुझे नोटपैड खोल देने दो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट. मैम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसा पहला फॉर लूप हुआ. हाँ अच्छा, चलो मैं उसके अंदर ही दो फॉर लूप है. हाँ उसके अंदर ही 2 फॉर लूप. कोई चेंजेस हो गए तो मुझे बोल देना. ओके, यस मैम. लेस देन n और यहाँ पे i प्लस प्लस. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल थिंग इनसाइड. हाँ, अभी इस फॉर लूप में क्या है? इस फॉर लूप में एक और फॉर लूप है. ओके, कोई भी वेरिएबल के लिए. हाँ, इसके अंदर और फॉर है या नहीं है? ना, इसके अंदर नहीं, वो आई वाले फॉर लूप के अंदर इसके नीचे एक और फॉर लूप है. हाँ मतलब ये मैम जैसे ये फॉर के नीचे यहाँ पे. हाँ इसके नीचे. हाँ ओके जस्ट नाउ जस्ट सी. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ये वाला जे वाला भी इसके अंदर है और ये वाला भी इसके अंदर है, राइट? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये वाला जो फॉर लूप है इट विल रन सेपरेटली, एंड ये वाला भी है वो वाला भी सेपरेटली रन होगा. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n. ओके, इट विल बी n और उसके अंदर मल्टीप्लाई. ओके, n मल्टीप्लाई बाय, और ये जो चलने वाला है ना, इसका सपोज ये भी आप लोगों का रन हो रहा है सपोज m टाइम, और नीचे वाला रन हो रहा है सपोज p टाइम. ओके, ये p टाइम रन हो रहा है. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m plus p. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. इट इज n मल्टीप्लाई बाय m plus p. व्हाई? बिकॉज ये जो लूप है इट विल रन सेपरेटली, ये सेपरेट रन होगा. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके साथ ऐड होनी है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी नेक्स्ट फॉर लूप के साथ. ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी दूसरे वाले लूप के साथ, और ये n तो चलना ही है. जब तक ये वाला पूरा अंदर वाली प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये वाली प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होने वाली है. सो इट विल बी n मल्टीप्लाई बाय n प्लस p. और ये फॉर लूप के लिए याद रखना, सपोज मेरे पास ना पूरे के पूरे सेपरेट फॉर लूप है. मेरे पास ऐसा कोई एल्गोरिथम मुझे दिया है. दिस इज अ फर्स्ट फॉर. ओके, दिस इज अ सेपरेट फॉर. उसके बाद में अगेन आई एम हैविंग दिस सेकंड फॉर लूप, और इसके बाद में ना आई एम हैविंग द थर्ड फॉर लूप सेपरेटली. तो इस जगह पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एडिशन. किस चीज की एडिशन होगी? तो पहला फॉर रन जहां तक हो रहा है, सपोज ये रन हो रहा है n तक, ये भी रन हो रहा है n तक. Try to understand the difference between the nested and the separate loops. Okay, and this is the n time. तो क्या होगा यहाँ पे? This the time complexity won't be the n cube. ये n cube नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? तो पहला for loop है वो separately चलना है for how many times? n time. दूसरा for loop separately चलना है for n time, और तीसरा भी चलना है separately for the n time. तो इसका मतलब क्या होगा? You need to do addition here. So n plus n plus n. So you can say that this is a 3n. I can say that this is a 3n. गेटिंग? अगर फॉर लूप सेपरेट जा रहे हैं तो यू हैव टू ऐड, लेकिन अगर कोई भी नेस्टेड जा रहा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, समझ में आ रहा है ये? और एक चीज, जितने भी आप लोगों के पास नेस्टेड लूप होंगे ना उतना मल्टीप्लाई कर देना है. अगर 3 होंगे तो 3 बार, 4 होंगे तो 4 बार, 5 होंगे तो 5 बार. सॉर्टिंग के जितने भी एल्गोरिथम्स है, ईच एंड एवरी एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस नेस्टेड लूप. हाँ, तो वो नेस्टेड लूप पे ही डिपेंड करेगा. रिमेंबर, सो इफ आई एम हैविंग
टू नेस्टेड फॉर लूप, तो वहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी द n स्क्वायर. एंड इफ आई एम हैविंग टू सेपरेट फॉर लूप, देन वहां पे मुझे क्या करना है, तो वहां पे मुझे एडिशन करनी पड़ेगी, वहां पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ. सो दैट इज अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जस्ट गिव मी 2 minutes. हम लोग एक बार और एक कोई होगा तो मैं देख लेती हूँ, otherwise we will just stop here and we will just start with the next one. See, उसी के अंदर जो सेम वाला है उसी के अंदर ही नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया है. कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंडीशन सिर्फ ये दी है, इट इज i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n, और यहाँ पे वो i तक चल रहा है. पहला था वो दोनों n तक चल रहे थे, बट ये जो है वो i तक चलेगा, है ना. ये यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे सिर्फ चेंज है, इट विल रन फॉर i टाइम, एंड द प्रीवियस वन वो n तक ही रन हो रहा था. बट अगर i की वैल्यू है तो आई कैन से दैट कि ये भी लूप n तक ही रन होगा, बिकॉज वो कंडीशन है वो i से लेके n तक ही चलनी है ना. अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. यहाँ पे कंडीशन थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है. वो क्या बोल रहा है, व्हाइल j लेस देन i, तो j लेस देन i इसका मतलब वो इंक्रीमेंट होते होते वो n तक ही जाना है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन n दी हुई है आप लोगों ने. सो फर्स्ट लूप कहाँ तक चलना है, n तक चलेगा. ये अंदर वाला लूप कहाँ तक चलना है, n टाइम चलना है, और नीचे वाले स्टेटमेंट्स जो है वो कहाँ तक चलेंगे, n. सो इफ बोथ आर वर्किंग विद द n एंड n, सो इसका मतलब क्या होगा, such a type of a nested loops or such a type of nested loops they will also have the time complexity as a n square. तो यहाँ पे भी n square ही होता है. अगर मैं यहाँ पे रिवर्स भी लिख दूं ना, सपोज मैंने यहाँ पे रिवर्स लिख दिया है, ये जो फॉर लूप था मेरा, यहाँ पे आई हैव रिटन j इज इक्वल टू n, j लेस देन 0 एंड j माइनस माइनस. यहाँ पे भी कंडीशन आप लोगों की n स्क्वायर ही होगी. मैं सिर्फ 0 to 9 लिखूं, 9 to 0 लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग्स, है ना. सो दैट इज अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरीके से फाइंड आउट होती है फॉर द फॉर लूप्स. और अगर सिंपल आप लोगों के स्टेटमेंट्स होते हैं तो दैट विल बी द एंड टाइम. लीनियर होता है तो दैट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन अभी आई वांट टू स्टार्ट विद द लॉगरिथमिक वन, है ना. एक बाइनरी सर्च वाला हम लोगों ने देखा था, लीनियर सर्च देखा था, बाइनरी सर्च, है ना. लीनियर सर्च में क्या हो रहा था, तो लीनियर सर्च में मैं आई हैव टू सर्च फॉर द एलिमेंट वन बाय वन, है ना. मैं एक बार एट अ टाइम मैं एक ही एलिमेंट को सर्च कर रही थी. सो व्हाट हाउ टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट विल बी द बिग O ऑफ n. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट अगेन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर सर्च, है ना, तो लीनियर सर्च में किस तरीके से काम होता है. तो लीनियर सर्च के अंदर सपोज मेरे पास कोई नंबर है, लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके, आई एम हैविंग सम नंबर्स हियर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना. मेरे पास आई एम हैविंग दिस नंबर. लीनियर सर्च में कोई भी कंडीशन नहीं होती है दैट योर नंबर शुड बी सॉर्टेड, हाँ, बट आई एम मैंने दिए, बस सॉर्टेड फॉर्म में मैंने दिए. लीनियर सर्च में कोई भी कंडीशन नहीं है, यू कैन हैव द नंबर इन एनी मैनर. ओके, चलो अब यूजर ने मुझे बोला है कि यूजर को सर्च करना है नंबर 1. ओके, यूजर ने मुझे दिया है दैट यूजर नीड्स टू फाइंड आउट द वेदर 1 इज प्रेजेंट इन द गिवन लिस्ट और नॉट. टेल मी, ये लूप जो हम लोगों ने लिखा था लीनियर सर्च के लिए, वो कितनी बार रन होगा, और हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर लूप विल रन. हम लोगों ने क्या लिखा था, फॉर लूप लिखा था. आई एम राइटिंग द कोड हियर. ओके, फॉर i इज इक्वल टू 0, द सेम थिंग वी हैव रिटन इन द प्रैक्टिकल, i लेस देन n, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, i प्लस प्लस. ओके, we used to increment this part. और इसके अंदर what I have written, तो इसके अंदर मेरे पास एक if का condition था. What was the condition? If key is equals to a of I, है ना. ये वाला हमारा था, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ else लिया था और कुछ we have taken some part. Now tell me, if I want to search for the number 1, I want to search whether 1 is present in the given list or not. तो ये for loop कितनी बार रन होगा, कितनी बार रन होगा ये for loop? if you're searching for the number 1, मैं number 1 के लिए ही सर्च कर रही हूँ. one time ये सबको समझ में आ रहा है? No, it won't be run for 2 times. The inside statement time complexity किस तरीके से find out होगी, अंदर वाले statement कितनी बार रन होंगे. For loop will run for 2 times, but inner statement will run for 1 time. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay, तो if you want to search for 1, if you want to search for the 1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big O of 1. ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big O of 1. नाउ सपोज यूजर ने मुझे दिया है कि यूजर वांट टू सर्च फॉर द नंबर 10, whether number 10 is present in the given list or not. तो नंबर 10 आने के पहले कितनी बार ये लूप खुद को रन करेगा, तो इट विल रन फॉर द 9 टाइम्स.
So what will be the time complexity? Time complexity will be big O of 9. So are you getting? जैसे जिस पोजीशन पे आपको आपका नंबर मिल रहा है उसके बेसिस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, वैरी हो रही है. सो किसके बेसिस पे वो होगी? तो नंबर वो की के बेसिस पे हो रही है. तो की को आई कैन से दैट इज एन, दैट इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट. सो कभी भी याद रखना व्हेनेवर यू हेलो, किसी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है तेरी आवाज. मैम की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं मैम की आवाज नहीं आ रही है. मैसेज करो मैम को. आई एम ऑडिबल नाउ. यस मैम, यस मैम. ओके सॉरी. हाँ चलो सी, अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं, सो व्हाट डू मीन बाय द बेस्ट केस? द बेस्ट केस होता है सपोज आई वांट टू सर्च फॉर द नंबर 1. जो भी लिस्ट में पहला एलिमेंट है मुझे उसको ही सर्च करना होगा, तो दैट विल बी द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और वो क्या होगी इस केस में? तो इट विल बी बिग ऑफ 1. ओके. नेक्स्ट होता है आप लोगों का एवरेज केस. तो एवरेज केस में सपोज यू वांट टू सर्च फॉर द नंबर 6, है ना? आई वांट टू सर्च फॉर द नंबर 6. और अगर मुझे नंबर 6 को सर्च करना है तो मुझे पहले के कितने एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे? हाफ एलिमेंट्स आई वांट टू सर्च, राइट? सो एवरेज केस और द आप लोगों का वर्स्ट केस जो होता है, बेस्ट केस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च. एवरेज केस के अंदर सपोज मुझे कोई मिडल वाला एलिमेंट सर्च करना है, और वर्स्ट केस का मतलब होता है कि सपोज आई वांट टू सर्च फॉर द लास्ट एलिमेंट. और अगर मुझे लास्ट एलिमेंट सर्च करना होगा तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रिपीट द लूप? फॉर n नंबर ऑफ टाइम आई नीड टू रिपीट द लूप. So what will be the time complexity in the worst case? It will be big O of n. It will be big O of n. So this is how you can find out the time complexity. This is very easy, है ना? मैंने for loop का पहले ही बोला था, अगर for loop आप लोगों का 0 to n चल रहा है तो inner statement जो होंगे that will run for the n time. And if they are running for the n time, इसका meaning क्या है? उसका time complexity क्या होगा? Big O of n होगा. So we have done with the linear search time complexity. Binary search का थोड़ा different, थोड़ा difficult है. So what we say in a binary search actually, तो in a binary search हम लोगों ने ना इसको डिवाइड किया था. we used to divide. किसको डिवाइड कर रहे थे हम लोग? तो जो भी मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो भी नंबर्स मेरे पास थे, वो नंबर को मैं कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही थी, है ना? मतलब कितने कितने पार्ट में वो डिवाइड हो रहा था. तो सपोज सबसे पहले मेरे पास 10 नंबर्स थे. ओके, आई वाज हैविंग सपोज 10 नंबर्स. तो 10 नंबर को सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था? 10/2, है ना? दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. ऐसे करके मैंने उसको कितने में डिवाइड किया था? 5 में. 5 को मैं अगेन कितने में डिवाइड करूंगी? 5/2. 5/2 का जो भी होगा सपोज 2 को किस में डिवाइड करूंगी? 2/2. सो व्हाट डू मीन बाय दिस हियर? तो बाइनरी सर्च के अंदर जो भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, उन नंबर्स को आप लोग कंटिन्यूअसली हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहे हो. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ. अभी ये फॉर लूप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप लोग वी आर डिवाइडिंग द नंबर्स इनटू द हाफ कंटिन्यूअसली. 100 नंबर होंगे तो पहले 50 होंगे, 50 के 25 होंगे, 25 के 12 होंगे, 12 के 6 के 3 और 3 के so on. So what we are doing actually, we are just dividing the large number, the large group into the smaller one. और किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं? तो डिवाइडेड बाय 2 से we are dividing. Now I'm taking this example directly from the website से ले रही हूँ so that you can follow. Okay, Geek for Geek से ले रही हूँ. Just try to understand here. Time complexity find out कर रहे हैं हम लोग for the binary search. और कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि whenever you are dividing, जब भी कभी आप divide and conquer टेक्निक यूज करते हो, at that time your time complexity will be logarithmic n, है ना? It will be log of n. अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? इट विल बी लॉग, इट विल बी इन द मतलब ये n के लॉगरिथमिक ही होगा, बट देयर इज समवॉट चेंजेस. वो चेंजेस क्या है समझ लो. तो सबसे पहले क्या होता है? तो फर्स्ट इटरेशन में हम लोग बाइनरी सर्च के अंदर क्या करते थे? सपोज आई एम हैविंग लेंथ ऑफ द एरे n.
तो सब एज अ स्टेप नंबर 1 वी यूज टू फाइंड आउट द मिड एलिमेंट, है ना. मिड कैसे फाइंड आउट होता था, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब क्या हो रहा था, सपोज मेरे पास 25 की लिस्ट थी, तो मैं 12 वाली लिस्ट आई विल पिक, है ना. सो दैट इज n डिवाइडेड बाय 2. उसके बाद में फिर से क्या हो रहा था, अगर नंबर फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो वी अगेन डिवाइड दैट n by 2 into again half. So n by 2 divided by 2, what will be the value? It will be n by 4. And again मुझे नंबर नहीं मिल रहा है, तो again I will be dividing this that n by 4 into again by 2. So that will be n by 8. So continuously आप क्या कर रहे हो, तो जो भी नंबर्स आप लोगों के पास आ रहे हैं उस नंबर को आप कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो. अभी मुझे फाइंड आउट करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड इफ आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मुझे यहाँ पे कुछ क्या रखने पड़ेंगे, तो कुछ वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे रखने पड़ेंगे. यू डोंट नो कि कौन से इटरेशन में आप लोगों का आंसर आएगा. सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि मुझे जो आंसर मिला है, दैट आंसर आई गॉट इन द के इटरेशन. मुझे के इटरेशन में मेरा आंसर क्या है वो मिल गया. तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स माय लूप विल रन, अगर मुझे के में आंसर मिल रहा है तो आई विल गेट माय आंसर इनटू n by 2 मल्टीप्लाई बाय k. मुझे इस वाले ये वाले इटरेशन में आई विल गेट माय नंबर, आई विल गेट माय I will find out whether number is present in the given list or not. ये समझ में आ रहा है. अगर के इटरेशन में, अगर मुझे सेकंड इटरेशन में आ रहा है ना, सेकंड इटरेशन में अगर मुझे वैल्यू मुझे मिल रही है तो वो चलेगा n by 2 टाइम. अगर मुझे थर्ड इटरेशन में मिल रहा है तो दैट विल बी n by 4 टाइम. लेकिन अभी वी डोंट नो कि कहाँ तक चलना है. वी हैव टू डिस्क्राइब दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इन अ जनरलाइज वे. मैं ऐसे नहीं कंसिडर कर सकती हूँ कि मुझे सेकंड इटरेशन में आंसर आएगा. आई कैन कंसिडर कि मुझे थर्ड में ही आंसर मिल जाएगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि मुझे जो आंसर मिला है मेरा, दैट आई गॉट इन द केथ इटरेशन, के वाले इटरेशन में मुझे मिल गया. तो इसका मतलब क्या है, कितनी बार आपने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यू हैव डिवाइडेड योर आंसर इनटू n by 2 मल्टीप्लाई बाय k. जितनी बार वो लूप रन होगा उतनी बार आपका जो भी लार्ज एलिमेंट्स है वो लार्ज एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, तो डिवाइड होते रहेंगे. सो दैट इज द रीजन, दैट इज द पार्ट वेयर आई गॉट माय वैल्यू. अभी क्या करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. okay, just to find out the time complexity. So what you have got, that is n by 2 is equals to k. okay, और ये हो जाता है. इसके बाद में जो भी एरे का जो लेंथ था that will become 1. okay, एक का ही बचेगा आप लोगों के पास. तब तक आप लोगों को क्या करना है, उसको कंटिन्यूसली डिवाइड ही करते रहना है. डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या बोलती है कि लूप तब तक चलेगा जब तक आप लोगों के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं बचता. okay, your loop will continue run until and unless you will be remaining with only one element. So इसका मतलब क्या है, what I am getting, n divided by 2 multiplied by k is equals to 1. This is what the equation that I have got. okay, this is the last equation जो मुझे मिला है. Now I will just simplify this equation. किसके टर्म में मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो always remember टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ n. n के फॉर्म में ही ये फाइंड आउट होनी है. तो इसका मतलब क्या है, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस 2 and k टुवर्ड्स द राइट हैंड पार्ट. इसको मैं टुवर्ड्स द राइट हैंड पार्ट क्या कर दूंगी, आई विल जस्ट शिफ्ट. तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट दिस एज n is equals to 2 raised to k. दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, है ना. n is equals to 2 raised to k. अभी क्या करना है, अभी मैंने बोला इफ यू आर वर्किंग विद अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, तो यहाँ पे जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक. इट विल बी लॉगरिथमिक. सो व्हाट आई विल डू हियर, I will just apply logarithm on both the sides. मैं दोनों साइड पे यहाँ पे logarithm apply कर रही हूँ, log लिख रही हूँ. So it will be log, okay, it will be log. I'm applying log base 2, okay, because it is 2 raised to k, right? So it is log to the base 2 is equals to n. और right hand side में भी क्या लिखोगे आप, तो right hand side में you can write that log to the base 2 और 2 raised to k. okay, log to the base 2 2 raised to k. इसको अगेन अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट यू विल गेट एज k log 2 और 2, है ना. ये दिस इज आई थिंक मैथ सबको आता है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं है. okay, so this is log to the base 2 2 raised to k. अगर इसको मैं अगेन सिंप्लीफाई करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट दिस एज अ 2, दिस k will here, so k multiply by log to the base 2 और 2. और हम लोगों ने क्या देखा है, दिस फॉर्मूला वी नो, है ना. लॉग किसी का भी आप सेम बेस और सेम नंबर का अगर लॉग फाइंड आउट करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर आता है 1, है ना. ये सबको पता है. तो इसका आंसर आने वाला है 1. सो व्हाट आई हैव गॉट हियर, आई हैव गॉट एज अ 1. तो क्या मिलेगा, अगर मैं वहां पे 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू
let me just clear this part. If I'm substituting the value as log to the base 2 as a 1, so what I will get as log to the log to the base 2 of n, and this is the time complexity. This is the time complexity. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रही है, log n क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने डेटा को क्या किया, तो डेटा को हम लोग कंटिन्यूसली हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना. एंड इफ यू आर डिवाइडिंग योर लिस्ट इनटू द टू हाफ्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये होगा लॉगरिथमिक. यही एक बात थी जब मैंने बाइनरी सर्च लिया था, तो मैंने बोला था कि बाइनरी सर्च इज आल्सो कॉल्ड एज लॉगरिथमिक सर्च. And why this is called as a logarithmic search? Because we are going to divide the list continuously into the halves. और हाफ में डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज हो रही है. ऑलवेज रिमेंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लॉगरिथमिक. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे log of n आ रहा है. लेकिन ये 2 क्यों बेस में जा रहा है, तो 2 बेस में इसलिए जा रहा है बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द लिस्ट कंटिन्यूसली इनटू द टू हाफ्स. अगर फर्स्ट इटरेशन में आ रहा है तो इट विल बी n/2, सेकंड में आ रहा है तो इट विल बी n/4. okay, उसके बाद में आ रहा है तो it will be n/8. so what you are doing actually, you are just dividing your list continuously into the halves. so that is the reason why इसका जो time complexity आएगा for the average case, base case के लिए नहीं है ये, but the average case के लिए, तो इसकी time complexity जाएगी log to the base 2 of n. are you getting this part? I am explaining for one more time. एक और बार फिर से देख लेते हैं, starting with the starting से करते हैं. binary search I think सबको पता है, फिर भी एक बार देख लो कैसे काम होता है यहाँ पे. सो ये था मेरे पास नंबर. ओके, दिस आर द नंबर्स गिवन टू मी. सो सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग मीड फाइंड आउट करते हो, है ना. हाउ टू फाइंड आउट द मीड? मीड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ लो हियर? इट इज 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ हाई? इट इज 9. सो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा आपको? 4.5 मिलता है. मैंने पहले ही बोला यू कैन टेक 4 एज वेल, यू कैन टेक 5 एज वेल. ओके, मैं 4 ले रही हूँ. सो दैट इज अ 4. तो मैंने क्या किया, तो मैंने जो मेरे पास 9 वाली लिस्ट थी, ओके, 0 to 9 10 नंबर की जो लिस्ट थी, उसको मैंने 5 मतलब 5 के ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया. सो क्या किया मैंने? 10/2, है ना. आई हैव डिवाइडेड द लिस्ट बाय 2, 10/2. तो मुझे अभी नेक्स्ट मिल गया. तो नेक्स्ट मुझे मिला है दिस पार्ट, ये 2 to 12 तक का पार्ट और 23 to 91 वाला पार्ट. यूजर ने जो सर्च करने के लिए दिया था दैट वाज 23. देन वी हैव टू चेक, है ना, हम लोग चेक करते थे whether this 23 is greater than 16 or not. अगर ग्रेटर देन होता है तो कहाँ पे जाना है? राइट हैंड साइड में. एंड यू कैन क्लियरली सी द 23 इज ग्रेटर देन 16. तो इसका मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड में जाके अगेन व्हाट वी यूज्ड टू डू, अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस लिस्ट, है ना. फिर से मिड फाइंड आउट करते थे. तभी मिड के फॉर्मूला क्या होगा? लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14/2. 14/2 का मतलब क्या होगा? 7 होगा. तो क्या किया मैंने? 4 को डिवाइड किया. कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में. आई एम गेटिंग दिस पार्ट. फिर मुझे 4 मिला. 4 को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगी? तो 4 को डिवाइड करूंगी अगेन 2 के पार्ट में. 2 को अगेन किस में डिवाइड करूंगी? 1 के पार्ट में. तो लास्ट में मेरे पास एक ही एलिमेंट बच गया. आई एम रिमेनिंग विथ ओनली 1 एलिमेंट. सो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर कब आएगा? whenever you are remaining with only 1 element, तब at that time you will get your answer. Now try to understand this in terms of complexity. तो यहाँ पे कुछ लिखा है, सी इटरेशन 1 में क्या होता है. तो इटरेशन 1 के अंदर you will find out the middle element, है ना. यहाँ पे इटरेशन 1 में you will be finding the middle element. तो मिडिल एलिमेंट क्या मिला था? 16 मिला था. 16 के बाद में अगेन हम लोगों ने क्या किया था? चेक किया था नंबर को. तो वो कहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा था. तो ग्रेटर देन मतलब कहाँ पे जाना था? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. यहाँ पे जाके अगेन क्या किया था? मिड फाइंड आउट किया था. वहां पे जाके अगेन क्या किया था? सो ये मिड आ गया था सपोज इसका 56 पे, है ना. तो 56 अगेन यू हैव टू चेक 23 56 से ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन है. कहाँ पे जाना है? लेफ्ट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या मिला? 23 एंड 32. तो 23 30 38 में क्या करोगे? अगेन यू विल बी फाइंडिंग द मिड एलिमेंट. और अगर मिड इज इक्वल टू किया आ रहा है तो आपका जो भी इटरेशन है वो वहीं पे क्या हो जाएगा? तो स्टॉप हो जाएगा. सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, मैं उसको 2 के पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. हाफ ऑफ पार्ट में आई एम जस्ट डिवाइडिंग. सो यहाँ पे क्या होना है? चलो, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एरे की लेंथ होती है n. तो फर्स्ट इटरेशन में वो जाएगा n/2. उसके नेक्स्ट इटरेशन में ये जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाय 2. उसके बाद में जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाय n/4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो इसका मतलब क्या हो रहा है? यू आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग योर लिस्ट इनटू द हाफ्स. ओके, और कब तक ये कंटिन्यू होगा? जब तक आप लोगों का मतलब जिस इटरेशन में आप लोगों को की इज इक्वल टू एलिमेंट नहीं मिलता तब तक वो जाएगा. So I will assume that I got my answer in the kth iteration. So what will be for how many times that particular things will repeat? The things will repeat for n/2 multiply by k.
it will repeat for n by 2 multiply by k. और आंसर कब आता है? तो आंसर आता है जब n by 2 multiply by k है is equals to 1 होगा. Whenever you are remaining with a one singular item, तब तक ये binary search continue होता है. So I will just simplify this term like that. n by 2 multiply by k is equals to 1. ओके और जो भी आप लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n के फॉर्मेट में होगी. सो मैं क्या करूंगी, n को मैं सेपरेट आउट कर लूंगी. सो हाउ आई कैन राइट, आई विल राइट दिस पार्ट एज n इज इक्वल टू 2 to the power k. अगेन लॉगरिथमिक में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट होनी है. सो आई विल जस्ट टेक log to the base 2 on both the sides. That is a log to the base 2 of n is equal to log to the base 2 and 2 raised to k. अभी 2 raised to k इसको अगर मैं अगेन सिंप्लीफाई कर दूंगी तो दिस आई विल गेट समथिंग लाइक दैट k मल्टीप्लाई बाय log to the base 2 of 2. और ये रूल सबको पता होगा कि बेस और नंबर सेम होता है तो उसका लॉगरिथम क्या होता है, 1 होता है. सो दैट इज अ लॉगरिथम ऑफ a is equals to 1. So लॉगरिथम ऑफ 2 of 2 will be 1. So I will just put the value here. मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दूंगी. So what will be the answer? The answer will be k is equals to मतलब यहाँ पे जाएगा मेरा k है ना, दिस इज k, ये वैल्यू हो जाएगी होल 1. So k is equal to log to the base 2 of n. So what will be the time complexity? Time complexity will be log to the base 2 of n. Are you getting this part? क्यों base 2 जा रहा है? Because 2 part में you are dividing, right? So that is how you can find out the time complexity for the binary search. One more important thing, कभी भी एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है कि मतलब डिस्क्राइब हाउ टू फाइंड आउट द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी. बट ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है. ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए बहुत सारे आते हैं. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लीनियर सर्च, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बाइनरी सर्च, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट. सॉर्टिंग भी देखेंगे ना, तब भी अगर ये आप लोगों का क्लियर होगा तो वहां पे सॉर्टिंग का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी समझना इज वेरी इजी, है ना. कीप इन माइंड, अगर फॉर लूप होगा और फॉर लूप चल रहा है फ्रॉम i to n तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n. अगर मेरे पास 2 नेस्टेड फॉर लूप है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी n मल्टीप्लाई बाय n. If I'm having 2 separate for loops, one separate that will run for the n time and the second one run for the m time, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n plus 1 n plus m. और अगर मैं कोई भी बड़ा वाला लिस्ट ले रही हूँ, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, दैट विल बी ऑलवेज लॉगरिथमिक. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. और अगर लीनियर सर्च की बात कर रहे हो, इफ योर सर्चिंग इज गोइंग इन अ लीनियर फैशन, 1 by 1 फैशन, तो बिग ऑफ n होगा. जिस पोजीशन पे आप लोगों का आपका n मिलेगा उस पोजीशन पे दैट विल डिफाइन योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अगर फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है तो बिग ऑफ 1, 9 पोजीशन पे मिल रहा है तो बिग ऑफ n. So instead of writing this whole number and the constant numbers, मैं उसको variable से replace कर दूंगी and that will be the big O of n. I hope so this thing is clear. और अगर किसी को क्लियर नहीं भी हो रही है तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो. ओके, कोई भी ये पूछेगा नहीं आप लोगों को कि ये कैसे फाइंड आउट हुई है. ओके, बट रिमेम्बर थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि जैसे नेस्टेड लूप जा रहा है या फिर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो लॉगरिथमिक ही जाता है, वो कभी भी नॉर्मल या लीनियर फैशन में नहीं जाता है. अभी हम लोग कोविड वाला भी देख रहे हैं ना कि कोविड वाला भी वहां पे 2 ग्राफ आते हैं. ओके, इफ यू हैव ऑब्जर्व, फर्स्ट होता है लीनियर और सेकंड होता है लॉगरिथमिक. सो व्हाट डू यू मीन बाय द लॉगरिथमिक वन? वो एक्सपोनेंशियल जा रहा है. जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है ना, ओके, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका जो मैप है वो जो मतलब ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. अभी इंडिया उस स्टेज पे आ चुका है कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज n की वैल्यू बढ़ रही है. तो n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एक्टिव केसेस भी आप लोगों के क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट अ लीनियर वन, तो लीनियर वन का मतलब होता है कि भाई जैसे जैसे 1 की वैल्यू चेंज हो रही है, ओके, जैसे केसेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे स्मॉलर चेंजेस आर देयर इन माय ग्राफ. बट अगर वो एक्सपोनेंशियली जा रहा है, इफ वी आर गेटिंग 50,000 1 लाख केसेस डे टू डे, मतलब डे टू डे लाइफ हम लोग इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है. ओके, so that is how you can find out, and this is about the time complexity. Now I don't want to start with the next part. I know I'm having some time right now, लेकिन bubble sort मैं अभी start करने के मूड में नहीं हूँ. I don't want to start right now the bubble sort. उसके पहले सिर्फ एक प्रोग्राम देख लो एंड मुझे सिर्फ इतना बोलना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी. जस्ट सी द एल्गोरिदम एंड टेल मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दिस इज द एल्गोरिदम. ओके, क्या बोल रहा है ये? Initialize I is equal to 0, repeat through step 4 if I less than n.
and the second one, initialize j is equals to 0 and repeat through step 4 if j less than n minus I minus 1. What is this? ये repeat through का मतलब क्या होता है? For loop. तो ये है मेरा first for loop और उसके अंदर nested for loop लिया है मैंने दूसरा वाला. This is a nested for loop. So इसका time complexity क्या जाएगा? You are having one for loop, उसके अंदर you are having second for loop. So what will be the time complexity here? Whether it is a linear, whether it is a logarithmic, or whether it is what will be the logarithmic. Why logarithmic? Are you dividing the list into two halves? कहाँ पे मैंने mid लिखा है? Square n square. n square. Very good. Right. n square क्यों जाएगा? Because ये पहला लूप कहाँ तक चलेगा? n तक. दूसरा लूप भी कहाँ तक चलने वाला है? n तक. तो इसका मतलब क्या? n multiplied by n will be n square. गौरव, don't get confused between the logarithmic. अगर logarithmic कब आएगा? अगर मेरे इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के अंदर कहीं पे भी मैंने ऐसे लिखा है mid is equals to, okay? मैंने कभी भी ऐसे लिखा है mid is equals to suppose some value divided by 2, तभी ये आप लोगों का logarithmic आएगा. logarithmic कब आता है? जब आप लोग आपकी लिस्ट को डिवाइड कर रहे हो, और सॉर्टिंग में हम लोग लिस्ट को डिवाइड नहीं करते हैं, एटलीस्ट बबल सॉर्ट में तो नहीं करते हैं. ओके, सॉर्टिंग में लिस्ट डिवाइड नहीं होती है. लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड देन वी विल अगेन सी. मुझे 2 मिनट दे दो. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. मैं काफी डाउट है इसमें एक्चुअली. काफी Again, डाउट है अभी जो आप वो होगा ही. इसमें डाउट्स तो रहने ही वाले हैं बिकॉज दिस इज नॉट वेरी सिंपल थिंग, है ना. कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी है. जस्ट लेट मी 2 मिनट दे दो, मैं जस्ट एक बार सर्च कर लेती हूँ. टाइम थोड़ा सोच समझ के आंसर देना. आई एम नॉट इन हरी. हाँ, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, सो टेक योर टाइम. आंसर वहीं पे है, बट आंसर मत देखना. आई एम टेकिंग सेम एग्जांपल्स फ्रॉम द Geek for Geeks. You can always go and you can refer. See, what you're having, I'm having one for loop. Okay, अभी इसका आंसर देने की ट्राई करो आप लोग. आंसर देखना बंद. नीचे आउटपुट इज गिवन बट डोंट सी. ओके, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द गिवन. मुझे 2 फॉर लूप दिए. पहला फॉर लूप है वो चल रहा है 0 to n तक, और दूसरा लूप चल रहा है 0 to n तक. एंड यू कैन क्लियरली सी दिस आर नॉट द नेस्टेड. ये नेस्टेड नहीं है. एक के बाद में दूसरा रन होना है. तो पहला कितनी बार चलेगा? n टाइम. और दूसरा कितनी बार चलेगा? m टाइम. तो इसका क्या होगा? इस विल बी द big O of n plus m. आपको समझ में आ रहा है? What will be the answer? The answer will be big O of n plus m. Right now, don't worry about the space complexity. मैं अभी स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ. These things will be ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्सिटी वाला डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स में हो जाएगा. मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट द स्पेस. लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझ पा रहे हो तो वेरी गुड. सी, कोई भी फॉर लूप नेस्टेड नहीं है, मतलब पहला कितनी बार चलना है? n+1 टाइम. दूसरा कितनी बार चलना है? m+1 टाइम. और अंदर वाले जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन होंगे? पहला स्टेटमेंट रन होगा n टाइम, दूसरा स्टेटमेंट रन होगा m टाइम. सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी? big O of n plus m. ये समझ में आ रहा है? Are you getting this part? यस मैम. Okay. मैम पिछला वाला एग्जांपल बता सकते हैं आप? हाँ, the last one. पिछला वाला. यस मैम. that we will see that. okay, बबल सॉर्ट में देख लेंगे. वो क्या हो रहा था? नेस्टेड फॉर लूप था. एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर आ रहा था. उसमें मैम उसमें Yes. कहाँ नेस्टेड फॉर था? वो एल्गोरिदम में मैम, नहीं समझ में आएगा. एलिमेंट्स कंपेयर हो रहे थे ना मैम. ऐसा हो रहा था ना कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कंपेयर होगा. अगर सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट तो फिर मतलब फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड तो फर्स्ट वाला सेकंड हो जाएगा एंड सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा. ऐसा था ना वो. मैम इसमें फिर n स्क्वायर कैसे हो जाएगा? वो n स्क्वायर इस तरीके से जाता है बिकॉज आप लोग ना कंटिन्यू चेक करोगे. आप लोगों को अभी बबल सॉर्ट का कंसेप्ट ही नहीं पता है. बबल सॉर्ट क्या करता है? 2 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स को कंटिन्यू चेक करता है एंड दैट इज इटरेटिव. वो इटरेटिव है. कब तक चलेगा? जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स चेक नहीं होते, वो कंटिन्यू तब तक चलता है. तो पहला लूप है, उसके अंदर जो इटरेशन है वो चलेगा n टाइम. उसके बाद ऊपर जाएगा, i को इंक्रीमेंट करेगा, अगेन जाएगा अंदर. लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट बबल सॉर्ट फर्स्ट. मुझे पहले उसका थ्योरी कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद में यू विल गेट योर आंसर. वो n स्क्वायर कब जा रहा है, क्यों जा रहा है. ओके, उसका इटरेशन पे वो काम होता है. नाउ जस्ट ट्राई टू गिव मी द नेक्स्ट आंसर. जिसको पूछूंगी ही और शी विल आंसर. हाँ, चलो. और ये हो गया मेरा. जो गिवन ये होता है ना, उसको हम लोग ये करते हैं जब भी कुछ भी डिवीजन किससे भी डिवाइड करते हैं तो बेसिकली दैट मींस वो लॉगरिथमिक ही होगा. लॉगरिथमिक जाएगा. यस. ओके मैम. Okay, try to answer this one.
for I is equals to 0, I less than n, I plus plus. Second one, I'm having the nested for loop. For j is equals to n, j greater than I and j minus minus. अभी यहाँ पे मैं I से लेके n तक चलाऊं या n से लेके I तक चलाऊं, same है. Don't get confused here. So tell me the time complexity. The answers given are big of n multiplied by log n, big of n multiplied by square root of n, and the next one it is big of n multiplied by n. Big of n तो आना ही नहीं है. क्यों नहीं आएगा? Because दो लूप है और एक के अंदर दूसरा है, तो big of n नहीं आएगा. नेक्स्ट वन क्या दे रहा है? n log n. लॉगरिथमिक कब जाता है? जब आप डिवाइड कर रहे हो. यहाँ पे कहीं डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी इट इज नॉट, इट इज फॉल्स. नेक्स्ट वन स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, ये भी नहीं जाएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर? The answer will be big of n multiply by n. Why n multiply by n? Because ये भी n time चलेगा, ये भी n time चलेगा, so that will be n multiply by n. I hope so you are getting this right now. Okay, मैं 0 से लेके 9 तक बोलूं या 9 से लेके 0 तक बोलूं, कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना, and 9 टाइम ही रन होना है, so that will be n multiply by n. I'm not getting the answer for this one, huh? See, now the next one. Now the next one. बोलो अभी क्या होगा? What will be the answer for this? समझ के बोलना थोड़ा. पहला कहाँ से जा रहा है? n/2 है ना, और नेक्स्ट वाला कहाँ से जा रहा है? j is equals to 2, j less than equals to n, और j को क्या हो रहा है? तो j का आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो कंटिन्यूअसली बाय 2. ओके, सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर? लॉगरिथमिक जाएगा क्या? लॉगरिथमिक जाएगा ये? नो नो नो. व्हाई? मैम क्योंकि यहाँ पे डिवाइड थोड़ी कर रहा है. Who is Jamish Ghogari? Ma'am, Please rename yourself. Just a minute. Who is Jamish Ghogari? नंबर क्या है? Please rename yourself. Okay, चलो. तो ये लॉगरिथमिक जाता है. क्यों लॉगरिथमिक जा रहा है? समझो यहाँ पे. कहीं पे भी, कहाँ पे भी, whenever you're dividing your numbers, okay, मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली n को डिवाइड कर रही हूँ. मेरे पास 10 होंगे ना, तो डायरेक्टली आई एम डिवाइडिंग टू द 5 होगा तो वो 2 जाएगा. अगर 2 जा रहा है तो उसका 1.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 1. आर यू गेटिंग? तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? यू आर डिवाइडिंग, और कितने से डिवाइड हो रहा है? तो यू आर डिवाइडिंग बाय 2, और बाय 2 जा रहा है ना, बाय 2 जा रहा है या बाय समथिंग जा रहा है, दैट विल बी ऑलवेज अ लॉगरिथमिक. और लॉगरिथमिक में क्या होगा? दिस इज n log n. व्हाइल n log n, तो पहला वाला जो लूप है ना, द फर्स्ट फॉर लूप, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है log of n, और सेकंड वाला जो फॉर लूप है वो उसका जो रिपीटेशन होना है दैट विल गेट रिपीटेड फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. सो n मल्टीप्लाई बाय log of n. So what will be the time complexity? The time complexity will be n log n. समझो, अगर मैंने mid is equals to low plus high divided by 2 लिखा है, इसका मतलब what I am doing, I am dividing my length by 2, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली i पे ही लिख दिया है कि i is equals to n by 2. सो i को ही मैं डिवाइड कर रही हूँ ना, और किससे डिवाइड कर रही हूँ? अगर 10 होगा तो 5 होगा, नेक्स्ट टाइम अगर 5 होगा तो 5/2 क्या होना है? तो 5/2 विल बी 2.5. 2.5 को अगेन मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल गेट 1. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग योर लीस्ट, और अगर मैं लीस्ट को डिवाइड कर रही हूँ तो ऑलवेज दैट विल बी द लॉगरिथमिक वन. ओके, अगेन समझो, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही लूप रहता ना. अगर मेरे पास सिर्फ ये वाला ही लूप रहता, ये वाला लूप नहीं रहता. ओके, सपोज आई वाज हैविंग ओनली वन लूप, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं था, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी लॉगरिथमिक ऑफ n. इट विल बी लॉगरिथमिक ऑफ n. लेकिन ये n log n क्यों जा रहा है? तो व्हाई दिस लूप इज गोइंग n log n? तो मेरे पास दूसरा भी लूप है, और वो कहाँ तक चलना है? तो वो चलना है n टाइम. सो मैं व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस n मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथमिक ऑफ n. सो दैट इज द रीजन व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n log n. समझ में आ रहा है? ये बिग ऑफ n तो आएगा ही नहीं. मैम नियर वन. यस, j equals to i/2 करते तो j is equals to i/2 कर रहे हो. अभी j is equals to i/2. i क्या है? i it is your counter variable. That will be again, मैंने वो फर्स्ट वाली स्लाइड शेयर की थी आप लोगों के साथ. अगर मैं n को डिवाइड कर रही हूँ, if I'm dividing i/2, if I'm dividing i/20, that will be divided by 20. Okay, divided by 2. तो वो तो लॉगरिथमिक, वो तो सिंपल जाएगा, वो सिर्फ n ही जाएगा. बट यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? आई एम डिवाइडिंग द n वैल्यू. मैं ना n को डिवाइड कर रही हूँ. एंड व्हाट इज n? n इज द साइज. n is the size and I is the counter. काउंटर को डिवाइड कर रहे हो और n को डिवाइड कर रहे हो.
these two are different things. Try to understand. अच्छा। है ना? मैम अगर मैं अंदर j equals just to a n minute. by 2 लिखा होता तो कहाँ पे? j equals to n by 2 लिखा होता तो log of n into log of n होता है ऐसा? Yes. अगर वो वहां पे जाता हेलो? तो, है ना? हेलो, हाँ जा राइट? हाँ मैम j equals यस मैम ओके मैम। ओके, देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो बहुत सारा टेंशन मत लेना। इट्स ओके, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट है ही नहीं। एक्चुअली आई एम डूइंग दिस इज नॉट पार्ट के मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट मुझे ऐसा था कि सॉर्टिंग का एल्गोरिदम मैं लूं उसके पहले आप लोगों को थोड़ा पता हो, सो इट विल बी इजियर फॉर मी कि सॉर्टिंग का मतलब उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव जस्ट टेकन दिस पार्ट, है ना? और यहाँ पे एक चीज याद रखना, इफ आई एम डूइंग i by 2 एंड आई एम डूइंग n by 2, i इट इज अ काउंटर एंड n इट इज अ साइज, और कभी भी साइज को डिवाइड कर रहे हो तो दैट विल बी द लॉगरिथमिक वन। सो दैट्स इट। ओके, वो मैम रीनेम कर लिया है आपने? कोई? यस। मैम एक और एग्जांपल है? और एग्जाम एक काम करो आप लोग, गीक फॉर गीक्स में यू विल फाइंड आउट सो मेनी एग्जांपल्स है, शायद यहाँ पे और एक एग्जांपल है। नहीं, सॉल्विंग वाला नहीं है अभी। ओके चलो, दिस वन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और अच्छे से आंसर देना। int a is equals to 0, I is equals to n, they have assigned the value to I को value assign किए, right now this is not a counter। बोलो अभी क्या होगा? I is equals to I by 2 हो रहा है और I by 2 जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? मैम ये log of n हो जाएगा क्योंकि i भले काउंटर हो लेकिन वो साइज है ना। वेरी गुड। सो ये क्या होगा? log of n जाएगा। व्हाई log of n? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, n को डिवाइड कर रहे हो। n को डिवाइड कर रही हूँ मतलब क्या कर रही हूँ? साइज को डिवाइड कर रही हूँ, और साइज को डिवाइड कर रही हूँ मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, सो इट विल बी बिग ऑफ log n। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको अभी? यस आई मैम। होप सो। सो आई थिंक इतना ही है यहाँ पे। यू कैन जस्ट गो मैम आप अगर लोग। वहाँ पे यस, मैम अगर वहाँ पे i equals to n नहीं किया होता और i by 2 किया होता तो n by 2 होता ना? हाँ तो n by 2 जाता, बिकॉज वो काउंटर था, ओके पर काउंटर था, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली उन्होंने क्या किया है, तो i को वैल्यू असाइन कर दी है। किसकी वैल्यू असाइन की है? n की। एंड व्हाट इज n? साइज। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हम आया जस्ट रेज समझ योर में आया। हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। और मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब मुझे समझ में तो आया एटलीस्ट, कि समझ में भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है। लॉगरिथमिक वन के फिर वो कहाँ से करना है, क्या करना है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इट्स ओके। वो थोड़ा थोड़ा बहुत सारा हम लोग सॉर्टिंग के अंदर देख लेंगे, है ना? वेरी ओके मैम। गुड। डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर थोड़े और एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हो तो गीक फॉर गीक में यू कैन फाइंड आउट, है ना? वहाँ पे गीक फॉर गीक में जाना है आप लोगों को, और वो यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस देयर गेट के एग्जाम में, और वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो आई थिंक